Hi everyone, welcome back to my channel Teaching Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta and today I'll be discussing motivation again from where we had left in our last video. In our last video, we had discussed, I'm just going through the slides of the PPT that the portion of the PPT that we already had covered. We had covered needs, and the definitions of motivation, and we had covered extrinsic and intrinsic motivation, discussed elaborately about motives, needs, kinds of drives, all that we had discussed in our previous video. And we had discussed these three kinds of theories also: the volition theories, the instinct theory, the psychoanalytic theory. So today we are going to discuss one more kind of school of thought and three theories under that school of thought, and that school of thought is behaviorist school of thought. तो उसके अंदर तीन थ्योरीज हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. वैसे इसके अंदर बहुत सारी आती हैं बट थ्री मेन हैं जो कॉमनली यूज होती हैं एजुकेशन फील्ड में, तो हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे. तो बिहेवियरिस्ट स्कूल एक्चुअली है क्या? बिहेवियरिस्ट स्कूल में ये माना जाता है कि जो बाहर से दिख रहा है, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स हम कर रहे हैं, वो उसमें से जो भी पार्ट बाहर दिखता है, जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारा बिहेवियर है. वो हमेशा किसी स्टिमुलस के रिटर्न में की गई रिएक्शन होती है. कोई भी चीज बाहर से आ रही है, उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ कर रहे हैं, जो लोगों को दिख रहा है वो हमारा बिहेवियर है. So any response which is made to a stimulus that comes from outside, it can be anything. It can be in the form of heat or cold, or can be someone talking to us, or can be this fly that just sat on my nose. And anything that comes from outside is an example of stimulus. And जैसे मैंने हाथ से उसको हटाया, this was my response. So ये मेरा एक रिएक्शन था, एक रिस्पॉन्स था, बिहेवियर था. सो ऑल दैट इज ऑब्जर्वेबल. अब मन में भी मैं बहुत कुछ हो सकता है सोच रही हूँ विच इज नॉट विजिबल टू यू, विच मे बी माई अंडरस्टैंडिंग, माई परसेप्शन, थिंकिंग. इन चीजों की बात नहीं करते हैं. बिहेवियरिस्ट्स ओनली स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड आर रिएक्शंस टू स्टिमुलाई. तो वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस जैसी बातों के बारे में बात करते हैं. तो ये सारे जितने साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि साइकोलॉजी प्राइमरीली स्टिमुलस रिस्पॉन्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, और जो बिहेवियर दिख रहा है हम उसको स्टडी कर सकते हैं, और उसी पे हम पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल की लर्निंग कैसे हो रही है वो स्टडी कर सकते हैं, और मोटिवेशन की थ्योरी भी हम उसी से निकाल सकते हैं. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड इन दिस स्कूल ऑफ थॉट. All the psychologists belonging to this school of thought, they believe that everything, whether it's personality or it's learning or even the motivational theories, they can be understood well based on the notion that behavior, that all that is visible, all those actions that we do that are observable and measurable to quite an extent, they are responsible for everything. So they base everything on behavior. So such theories are behavioral theories. We'll be taking up three out of them: Thorndike's, Pavlov's, and Skinner's today. And motivation को भी हम इन्हीं से लिंक करेंगे. तो थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है, उसको समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं. इसकी पूरी एक थ्योरी है लर्निंग थ्योरी, जो हम बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ऑल दीज थ्योरीज विल डिस्कस सेपरेटली, बट टुडे वी आर स्टडिंग मोटिवेशन. सो वी हैव टू understand a bit of what this experiment and this theory was, and then link it with motivation. So Thorndike had taken a puzzle box and उसने इस बॉक्स में एक कैट को बंद कर दिया था, and this cat was hungry. ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैट को भूखा रखा गया था, खाना खिला के नहीं रखा था. एंड उसके बाहर एक बर्तन में फिश रखती थी. अब उस फिश की स्मेल भी कैट को आ रही थी, एंड द कैट वाज inside the puzzle box and wanted to come out desperately because the cat was hungry and there was a fish acting as a stimulus outside, right outside the box, and the smell of the fish, and because the cat was hungry, was making the cat desperate to come out of the box. So the cat was doing a lot of random movements.
And because of these random movements, suddenly the cat accidentally pressed a lever and the box opened and the cat could come out and eat the fish. तो यहाँ तीन चीजें हुई जो मैंने लिखी हुई है साइड में. Readiness, because the cat was ready to come out, because the cat wanted to come out, the cat was willing to come out because the cat was hungry. सेकेंड, वो जब गलती से उसने इतने सारे रैंडम मूवमेंट्स किए और गलती से जब लीवर प्रेस कर लिया, वो बाहर आ गई, उसने फिश को खा लिया और उसका उसे पॉजिटिव इफेक्ट फील हुआ, उसे उसकी हंगर क्वेंच हो गई. तो यहाँ पे इफेक्ट मैंने वर्ड यूज किया है. एंड अगर इस चीज को बार बार हम करते रहें, बार बार उसे हम बॉक्स में भरते रहें और बाहर फिश रखते रहें और हर बार हम उसको करने देंगे सारे रैंडम मूवमेंट्स और बाहर आने दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत टाइम नहीं लगाएगी, बहुत रैंडम मूवमेंट्स नहीं लगाएगी, वो समझ जाएगी धीरे धीरे 2-3 बार की एक्सरसाइज के बाद, इसलिए ये वर्ड लिखा है मैंने एक्सरसाइज, प्रैक्टिस के बाद उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये लीवर प्रेस करने से ये दरवाजा खुल जाता है और रैंडम मूवमेंट्स उसके कम हो जाएंगे, जो वो ट्राई एंड एरर कर रही थी वो कम हो जाएंगे और वो एक बार में लीवर को प्रेस करके बाहर आ जाएगी और फिश को खा लेगी. तो इससे हमने ये देखा कि वो लीवर को प्रेस करना जो सीख रही है, जो मोटिवेशन उसको मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है. एक तो वो भूखी है, सेकंड उसके सामने जो स्टिमुलस है उसके लिए, उस तक पहुंचने के लिए वो रैंडम मूवमेंट्स कर रही है और रैंडम मूवमेंट्स में गलती से ट्रायल एंड एरर से जब सही मूवमेंट हो जाता है और गेट खुल जाता है, तब वो जाके उस फिश को खाती है और उससे उसको एक अच्छा इफेक्ट मिलता है. तो यहाँ पे उसकी हंगर, रैंडम मूवमेंट्स, चांस से जो सक्सेस मिली वो, और सक्सेस के बाद जो उसको अच्छी फीलिंग आई खाने के बाद वो, एंड बार बार ये चीज करने की वजह से जो उसकी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस हो गई, उसका मोटिवेशन हाई हो गया टू लर्न प्रेसिंग द लीवर. तो लाइफ में हम ऐसी बहुत सी चीजें गलती से सीख जाते हैं और फिर मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि गलती से हम कुछ अच्छा कर जाते हैं. हम कहीं घूमने गए हैं और गलती से कोई अच्छी जगह हमने डिस्कवर कर ली, तो हम अब वहां बार बार आएंगे. तो ट्रायल एंड एरर करके भी हम बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी होता है कि हमारा कुछ तो रेडीनेस हो, कुछ तो उसका अच्छा इफेक्ट हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस से वो और स्ट्रांग हो जाता है. क्या स्ट्रांग हो जाता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का बॉन्ड. स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? फिश. और रिस्पॉन्स क्या है? प्रेसिंग द लीवर टू कम आउट ऑफ द बॉक्स. जितनी बार हम उसको फिश देते रहेंगे और उसको ऐसे बंद करते रहेंगे, हर बार वो रैंडम मूवमेंट्स करेगी, बट हर बार इस एक्सरसाइज की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा और वो समझ जाएगी कि लीवर प्रेस करने से ही मैं बाहर आ सकती हूँ एंड ये एसआर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा. तो यहाँ पे मोटिवेशन का क्या लिंक है कि इंडिविजुअल, वैसे तो ये लर्निंग की थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन से क्या कनेक्शन है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बाय ट्रायल एंड एरर. By mistake, they sometimes, after several wrong attempts, they may happen to make the right movement, leading to some kind of pleasant experience. And when this pleasant experience is repeated, learning happens, and we are motivated to do that again. तो ये मोटिवेशन की हम लिंक निकाल सकते हैं थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर्स. इसी तरह से पावलोव, इनकी भी थ्योरी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, इनकी भी लर्निंग थ्योरी है. इन्होंने क्या किया, हम सबको पता है कि डॉग्स सैलिवेट, जब भी डॉग के सामने कुछ खाने की चीज होती है एंड द डॉग इज हंग्री, उसके मुंह से सलाइवा निकलता है. सो द डॉग, व्हेनेवर फूड वाज प्रेजेंटेड टू डॉग, डॉग वाज सैलिवेटिंग. अब पावलोव ने क्या किया, एवरी टाइम व्हेन फूड वाज बीइंग प्रेजेंटेड टू डॉग, ही वाज रिंगिंग अ बेल. तो जितनी बार फूड दिया गया डॉग को, उतनी बार बेल प्रेस की. तो बेल प्रेस हमेशा फूड के साथ की गई और सैलिवेशन होता रहा. कुछ टाइम बाद ये देखा कि फूड नहीं भी दिया और सिर्फ बेल प्रेस कर दी तो भी द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग. मतलब डॉग ने बेल को खाने से एसोसिएट कर दिया. तो अब खाना देने के पहले ही अगर हमने बेल बजा दी तो सिर्फ बेल बजने से ही डॉग को ये लगने लगा कि अब खाना मिलेगा, तो उसके मुंह से सलाइवा. तो लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हम करते हैं बिकॉज हम एसोसिएशंस बना देते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. जब मैं छोटी थी तो जब मेरे फादर आते थे आफ्टर वर्क फ्रॉम हिज ऑफिस, उनकी गाड़ी की आवाज से ही मुझे एक अच्छी फीलिंग आने लगती थी एंड आई यूज्ड टू रश एंड ओपन द डोर, क्योंकि मैंने उनके आने को उनकी कार की साउंड से एसोसिएट कर दिया.
ऐसे ही बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कोई टीचर पसंद नहीं है या किसी टीचर से डर लगता है। सपोज मैथ्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, या हिंदी की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, या इंग्लिश की टीचर है, वो बहुत डांटती हैं एंड उनके पैरों की आवाज से ही एक फियर की फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि फियर को हमने उनकी पैरों की आवाज से एसोसिएट करते हैं। भले ही वो टीचर वहां से चली जाए घूमकर, लेकिन उनकी पैरों की आवाज सुनकर ही, उनके चलने की आवाज सुनकर ही, उनकी शूज की आवाज से ही डर लगने की फीलिंग आने लगेगी। So life में a lot of things we do because we form associations. Children, they love going to a classroom, small children, because it's so nicely painted. Because the teacher gives sweets when the children go in that class. So because of that sweet that is distributed, children love going to the class. So they've associated going into the class from that sweets that they get there in the entrance. So we are motivated to do a lot of things because there are good associations, and we are not motivated to do certain things in our life because there are bad associations that we have formed with other things. तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन, जो लर्निंग की थ्योरी है, बेसिकली है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। हम कंडीशनिंग करते हैं, हम जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं लोग बच्चों के साथ खासतौर से, कि हम अच्छी चीजों को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं जो चीजें हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो इस तरह का एसोसिएशन की वजह से मोटिवेशन होता है टू डू समथिंग। तो ये आया है पावलोव के अंडर, उनकी क्लासिकल कंडीशन के अंदर। अब डिटेल्स में इसको हम पढ़ेंगे जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ मोटिवेशन से लिंक किया है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो स्किनर ने किया था। हम सबको पता है कि जब हमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हमने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंडर पढ़ा है, इंट्रिंसिक के अंडर भी हम कई बार कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस भी अचीव करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। So what did Skinner do? He took a puzzle box and he kept a rat inside that box. उन्होंने एक बॉक्स में रैट को रखा एंड बाहर खाना था, एंड ऐसा कुछ अरेंजमेंट था कि जैसे वो लेवर को प्रेस करती थी उसका खाना उसको मिल जाता था। बट द रैट डिड नॉट नो कि ऐसा कुछ है कि खाना रखा हुआ है। जैसे फिश को थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में खाना कंटिन्यूसली दिख रहा था सामने, तभी वो रैंडम मूवमेंट्स कर रही थी। यहाँ पे रैट डजंट नो अबाउट फूड, कि फूड है, लिवर प्रेस करने से फूड मिलेगा। वो ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स कर रही थी, और उसमें से एक मूवमेंट उसने गलती से लिवर प्रेस करने का कर दिया जिसमें उसको खाना मिल गया, एंड दैट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अब बार बार वो बहुत तरह के रिस्पॉन्सेस कर रही है, लेकिन जो उसका करेक्ट रिस्पॉन्स था वो था प्रेसिंग ऑफ लीवर। तो हम खाली प्रेसिंग ऑफ लीवर पे ही ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है कि खाली प्रेसिंग ऑफ लीवर पर ही उसको खाना मिलेगा। मतलब हमने रैट को लीवर प्रेस करना सिखाया। कैसे? उसको हर बार लीवर प्रेस करने पर ही खाना मिलता था और कुछ भी करने पे खाना नहीं मिलता। सो हम रीइंफोर्स करते थे उसका लीवर प्रेस करना। लीवर प्रेस करने को हम रीइंफोर्स करते थे बाय गिविंग फूड। सो this is how humans also learn to do things and are motivated to do things when there are rewards associated with something. अगर किसी चीज को करने से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, हम उस चीज को करेंगे। अगर किसी चीज को करने से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम ग्रेजुअली उसको करना छोड़ देंगे। यहाँ पे पनिशमेंट भी काम करता है। पनिशमेंट से भी डिमोटिवेशन हो सकता है। अगर हम यहाँ लीवर प्रेस करने पर उसको कुछ कड़वी चीज दे दें तो शायद वो लीवर प्रेस करना छोड़ दे। तो इसका मतलब पनिशमेंट ऑल्सो वर्क्स इन अ ग्रेटर वे, इन फैक्ट लाइक द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्क। अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलने का जो इफेक्ट है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पनिशमेंट का होता है, लेकिन पनिशमेंट को हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। साइकोलॉजी में हम ये अवॉइड करते हैं। नहीं कुछ देना बेटर है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बेटर है दैन गिविंग समथिंग बैड। कुछ खराब देने से बेटर है कि हम ना दें। इस तरह से हम चीजों को सिखाते हैं। तो ये मोटिवेट हम लाइफ में, because we are getting positive reinforcement from certain things, we are motivated to do those things. ये स्किनर की थ्योरी से निकल के आता है। तो यही मैंने इस स्लाइड में भी यही बताने की कोशिश की है कि लर्निंग भी ऐसे ही होती है। लर्निंग के लिए मोटिवेशन भी हमें तब मिलता है जब रिवॉर्ड एसोसिएटेड होता है। अगर हमें मिल रहा है रिवॉर्ड तो इंक्रीज इन बिहेवियर है, अगर हमें पनिशमेंट मिल रहा है तो डिक्रीज इन बिहेवियर, बट दिस इज नॉट इनकरेज्ड। तो पनिशमेंट से बेटर होता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड नहीं देना। एक्सटिंक्शन भी हो जाता है कई बार। अगर मान लो जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट में रैट लीवर प्रेस करती जा रही है और अब खाना नहीं मिल रहा है तो वो भूल भी जाएगी, उसको ये जो मोटिवेशन उसका कम भी हो जाएगा। तो एक्सटिंक्शन से भी मोटिवेशन कम होता है। तो हमें कॉन्स्टेंटली
रिवॉर्ड मिलते रहने चाहिए टू रिमेन मोटिवेटेड। अब इसका ये जितनी हमने ये थ्योरीज पढ़ी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी हमने जो पढ़ी है, इनका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है? ये कंपल्सरीली लर्निंग थ्योरीज में पढ़ाई ही इसलिए जाती हैं बिकॉज लर्निंग में रिवॉर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मोटिवेशन को खास तौर से जोड़ा गया है इन फैक्टर्स से। ऐसा कहते हैं कि अगर आप एज ए टीचर बच्चों को सिर्फ पढ़ाते जा रहे हो और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी इम्प्रूवमेंट, उनके एफर्ट, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तो दे विल ऑलवेज फील डिस्करेज्ड एंड दे विल स्टॉप मेकिंग दोज एफर्ट्स कंटिन्यूसली। So you have to continuously appraise them, you have to continuously praise them, encourage them, motivate them. जरूरी नहीं है कि आपको उनकी हर बार तारीफ करनी है या सर्टिफिकेट देना है या प्राइज देना है. It can be in the form of just a small nod of your head, a smile, or just being friendly or a gesture or things like that. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये क्लियर करें कि ये काम करने से ही आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन देन यू विल नॉट गेट दिस बेनिफिट और दिस रिवॉर्ड. सो वी हैव टू एनकरेज एवरी स्मॉल स्टेप ऑफ सक्सेस और ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट. एंड ये रिवॉर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इन बिहेवियर थ्योरी से ही मिलता है. हमें बेस्ट रिस्पॉन्स, जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में बेस्ट रिस्पॉन्स था लीवर प्रेस करना, तो वैसे ही जब स्टूडेंट कोई अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तब हमको उसके उस रिस्पॉन्स को इनकरेज करना है बाय गिविंग सम रिवॉर्ड. पैवलॉव कहता है एसोसिएशन. पैवलॉव की एसोसिएशन को भी हम यूज कर सकते हैं. हम छोटे बच्चों की बुक्स को इसीलिए इतनी कलरफुल बनाते हैं, इतने ज्यादा एनिमल्स और टॉकिंग एनिमल्स के कार्टून्स एंड इंटरेस्टिंग फनी थिंग्स हम इसीलिए यूज करते हैं टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रन. मिड डे मील प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने इसलिए शुरू किया था टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू रिमेन इन द स्कूल बिकॉज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल्स. तो इस तरह की चीजें हम करते हैं, एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, रिवॉर्ड्स फॉर्म करते हैं, एंड वी आल्सो encourage students to do a lot of errors and mistakes and trials and then come to the correct responses on their own. तो ये निकल के आती हैं इनकी बिहेवियर थ्योरीज की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. अब हम ड्राइव थ्योरीज भी आज डिस्कस करेंगे. ड्राइव थ्योरीज को हम वैसे चाहें तो अलग भी रख सकते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी से, बट हम इनको इनके अंडर भी रख सकते हैं क्योंकि कई हद तक ये बिहेवियर से लिंक्ड है. तो बेसिकली दो लोगों ने ड्राइव थ्योरीज को बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है, वुड्सवर्थ एंड हाल्स. अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, हमारी सोशियोलॉजिकल नीड्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं. जब ये नीड्स पूरी नहीं होती हैं, जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो, और बहुत स्ट्रॉन्ग कमी हो जाती है, तो ड्राइव क्रिएट होती है. और ड्राइव को नेगेट करने के लिए, वो जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम एफर्ट्स के, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं और उस ड्राइव को खत्म करते हैं. तो ये बात वुड्सवर्थ ने भी बोली है अपनी थ्योरी में. इसमें कुछ नया नहीं है जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. बट एक चीज उन्होंने कही है कि उस हमेशा एक गोल होता है एंड वो गोल ही ड्राइव रिडक्शन का होता है, उस टेंशन को कम करने का होता है, और उसके लिए हम परसिस्टेंटली काम करते हैं, हम बिहेवियर को बार बार वो करते हैं ताकि वो ड्राइव खत्म. हल ने थोड़ा सा इस चीज में ऐड किया है. He has also said the same thing, that a lack of something or a need of something causes a state of imbalance. And जब ये imbalance होता है तो इसको हम कहते हैं lack of homeostasis. Homeostasis means a state of balance. जब हमारी सारी needs fulfill हो रही हैं, हमें कोई tension नहीं है, कोई disequilibrium नहीं है, तो इसको हम कहते हैं homeostasis. अब जब कोई need क्रिएट हो गई, किसी चीज की कमी हो गई, तो इसका मतलब होम्योस्टेटिस डिस्टर्ब हो गया, वो इक्विलिब्रियम बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, एंड देन अराइजेस अ ड्राइव और अ स्टेट ऑफ टेंशन. Because of this tension, we are motivated to remove this tension or behave in a certain manner, and hence restore the homeostasis. तो अगर हमें भूख लगी है, तो हमारे खाने की कमी हुई है, तो हमारी हंगर ड्राइव बढ़ेगी, तो हम खाना खाएंगे एंड होम्योस्टेटिस विल बी रिस्टोर. लेकिन अगर ये चीज बार बार हो रही है तो हमारी हैबिट्स भी फॉर्म हो रही है, और यही बात हल ने न्यू बताई है अपनी थ्योरी में कि बार बार जब हम ड्राइव रिडक्शन करते हैं उससे हमें एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि होम्योस्टेटिस इज अ स्टेट ऑफ नो टेंशन, तो उस वजह से हमारी हैबिट्स भी बनती हैं. तो
हम कितने मोटिवेटेड होंगे उस ड्राइव को खत्म करने के लिए, उस टेंशन को खत्म करने के लिए, वो उन्होंने इस इक्वेशन से बताया है। तो रिएक्शन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ हाउ मोटिवेटेड वी आर। कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, कोई भी नीड बन रही है हमारी, जिसकी वजह से कुछ कम हो गया है, जिसकी वजह से एक ड्राइव या टेंशन की स्टेट बनी है, होमियोस्टेटस कम हो गया है हमारा, तो उसको पूरा करने के लिए, उस टेंशन को हटाने के लिए हम कितने मोटिवेटेड होंगे, वो है रिएक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब हम बहुत मोटिवेटेड हैं, रिएक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब है हम कम मोटिवेटेड। तो ये जो रिएक्शन पोटेंशियल है, हम कितने मोटिवेटेड हैं किसी चीज को करने के लिए, ये चार चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, चार चीजों पर डिपेंड करता है, और दो चीजों का सब्सट्रैक्शन है। मतलब दो चीजें बढ़ेंगी तो ये कम होगा, और ये चार चीजें बढ़ेंगी जिनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये बढ़ेगा। तो कौन सी चीजें हैं जो बढ़ती हैं? तो रिएक्शन पोटेंशियल या हमारा मोटिवेशन टू डू समथिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। हमने यहाँ पे चार चीजें लिखी हैं। एस आप देख सकते हैं, हैबिट स्ट्रेंथ। तो अगर किसी काम को करने की हमारी हैबिट है, तो ऑब्वियसली जैसे ही उस चीज की कमी होगी, हम आउट ऑफ हैबिट उसको ज्यादा करेंगे। तो जितनी ज्यादा हमारी हैबिट है, अगर हमारी हैबिट है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की, तो हमारी जैसी नीड होएगी, हम तुरंत खाना खाएंगे। तो हमारी हैबिट बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो मोटिवेशन टू ईट फूड इज ऑल्सो हाई। देन द सेकेंड फैक्टर इज ड्राइव। कितनी स्ट्रांग है ड्राइव? थर्स्ट ड्राइव इज स्ट्रॉन्गर देन हंगर ड्राइव, बिकॉज हम ये पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकली। तो थर्स्ट, तो पानी पीने के लिए हम ज्यादा मोटिवेटेड होंगे देन टू ईट समथिंग। पानी के बिना हम ज्यादा देर नहीं रह सकते, खाने के बिना हम कंपैरेटिवली ज्यादा देर रह सकते हैं। सो दो चीजें जो बढ़ती हैं, तो रिएक्शन पोटेंशियल, मोटिवेशन बढ़ता है, तो हैबिट स्ट्रेंथ और ड्राइव। फिर जो चीज हमें मिल रही है वो कितनी टेस्टी है, कितनी एक्साइटिंग है, इससे भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हमने वहां पे लिखा हुआ है इंसेंटिव। और जो चीज हमें मिल रही है वो कितनी सेटिस्फाइंग है, कितनी लेजिटिमेट है, कितना उसमें कितनी स्ट्रेंथ है हमारी ड्राइव को पूरा करने के लिए, कितनी सफिशिएंसी है उसमें, वो होती है स्टिमुलस इंटेंसिटी। तो ये चार फैक्टर्स की चीज कि हमारी हैबिट क्या है किसी चीज को करने की, हमारी ड्राइव कितनी, हमारी कमी कितनी स्ट्रांग है, और वो जो चीज हमें मिल रही है जो उस कमी को पूरा कर रही है वो कितनी अट्रैक्टिव है, और क्या वो कंप्लीट है कि नहीं। तो अगर हमें भूख लग रही है, हमारी हंगर ड्राइव क्रिएटेड है, तो हम कितने मोटिवेटेड होंगे टू ईट, ये डिपेंड करता है कि हमें खाने की आदत कितनी पड़ी है, हमें कितना शौक है खाने का, हमारी भूख कितनी ज्यादा थी, हमारी ड्राइव कितनी ज्यादा थी, या फिर इंसेंटिव, मतलब खाना कितना टेस्टी बना है। कई बार बहुत खाना टेस्टी होता है तो भूख और बढ़ जाती है। और स्टिमुलस इंटेंसिटी, वो खाना सिर्फ एक स्पूनफुल है कि पूरी प्लेट भर के है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हमारी भूख को क्वेंच कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा खाने का मोटिवेशन या रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन चारों चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, इन चारों के बढ़ने से मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिनके बढ़ने से मोटिवेशन कम होगा। वो है कई बार, जैसे IR मैंने लिखा है, फटीग। कई बार हम इतने टायर्ड होते हैं कि भूख लगने के बावजूद भी हम नहीं खाना चाहते। तो अगर हम बहुत टायर्ड हैं तो कितनी भी हमारी ड्राइव ज्यादा हो, कितना भी टेस्टी खाना हमें मिल सकता हो, हम नहीं खाएंगे। या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है कि हम डिप्रेस्ड हैं, या खाना किसी ऐसे ने बनाया जो इंसान ही हमें पसंद नहीं है, उसके हाथ का हमें खाना ही नहीं है, या कोई और रीजन, हम इरिटेटेड हैं, या हम बोर्ड हैं, या वो सब्जी हमें पसंद नहीं है। तो ये हैं सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये रिएक्शन दी हुई है। क्या इसके इम्प्लीकेशंस हम निकाल सकते हैं इस थ्योरी के? ये सारी थ्योरीज बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थी। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की तो हमने एसोसिएशन, रिवॉर्ड और ट्रायल एंड एरर की आप ये डिस्कस हम कर चुके हैं। बट ये जो ड्राइव थ्योरीज थी, जिनको भी हम बिहेवियरिज्म के अंडर, बहुत लोग इनको बिहेवियरिज्म के अंडर रखते हैं, इनसे क्या निकाल सकते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस? ये एज टीचर्स हम इनको क्या यूज कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया था हल्स की रिएक्शन में कि कई बार मोटिवेशन कम हो जाता है अगर फटीग हो या कोई सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हो। तो अगर हम किसी लर्नर को मोटिवेट करना चाह रहे हैं फॉर लर्निंग समथिंग, and we are observing that the learner is getting tired or has a sociological reason such as no interest in the subject or some kind of problems at home, then we need to eradicate those factors also and to keep his or her motivational levels high.
तो हमें फटीग का और साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें भी मोटिवेशन में इंटरफेयर करती हैं, हमें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना है। तो ये एक इम्प्लीकेशन निकल के आ सकती है फ्रॉम दिस थ्योरी। तो बाकी की जो थ्योरीज हैं जिसमें हम अराउजल थ्योरी पढ़ेंगे, देन कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हैं, पर्पसिव थ्योरीज हैं, पर्पसिव बिहेवियरिज्म वाली थ्योरीज जो टोलमैन की हैं वो हैं, और ह्यूमनिस्ट थ्योरीज हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने जस्ट रिकैपिचुलेटिंग वेरी क्विकली, वी हैव स्टडीड टू काइंड्स ऑफ थ्योरीज, द बिहेवियरिस्ट थ्योरीज एंड द ड्राइव रिडक्शन थ्योरीज। बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में हमने 3 पढ़ी हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर एंड पैवलोव। थॉर्नडाइक बात करते हैं कि गलती से कई बार हम ऐसे काम कर लेते हैं जिसका रिजल्ट बहुत प्लेजेंट होता है, और जब बार बार होने लगता है तो उन कामों को हम करना भी सीख जाते हैं एंड मोटिवेटेड रहते हैं। स्किनर रिवॉर्ड से एसोसिएट करते हैं कि जो चीज़ें हमें अच्छा रिवॉर्ड दे रही हैं उनके लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं, और जो चीज़ें हमें रिवॉर्ड नहीं दे रही हैं हम ग्रेजुअली उसमें मोटिवेशन हमारा कम हो जाता है। पनिशमेंट भी मोटिवेशन को कम करता है, लेकिन इसको ये रिकमेंडेड नहीं है, ये थोड़ा नेगेटिव माना गया है। पावलोव कहते हैं कि हम उन चीज़ों को करने में मोटिवेटेड रहते हैं जिनसे हमारे पॉजिटिव एसोसिएशंस फॉर्म हुए हैं। बच्चा उस क्लास में जाना पसंद करेगा जहाँ पर टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसने टीचर के बिहेवियर को लर्निंग से एसोसिएट कर दिया। तो ये हमने बिहेवियरिस्ट्स के अंडर पढ़ी थी। एंड देन ड्राइव रिडक्शन में वर्ड्सवर्थ की सिंपल सी थ्योरी है कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई नीड होगी तो उसकी वजह से ड्राइव होगी, ड्राइव इज अ स्टेट ऑफ टेंशन जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली ट्राई करेंगे कि वो टेंशन कम हो जाए। And in the end, we discussed the Hull's theory. उन्होंने जो इक्वेशन दी है वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। उसने बताया है कि 4 चीज़ें हैं जो हमारी हैबिट्स हैं, हैबिट्स अगर स्ट्रांग होंगी, ड्राइव अगर स्ट्रांग है, और अगर इंटेंसिटी स्ट्रांग है, और उसका जो अमाउंट है वो स्ट्रांग है, जो चीज़ उस नीड को पूरी कर रही है, तो हमारा मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। लेकिन अगर फटीग आ रहा है, कोई सोशियोलॉजिकल फैक्टर है जो नेगेटिव है, उसकी वजह से मोटिवेशन कम भी हो सकता है। एंड इनके हमने इम्प्लीकेशंस भी निकाले हैं कि एज अ टीचर आपको रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस हमेशा करने पड़ेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट वेज इन गिविंग देम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट to encourage certain kind of behaviors. You can also help forming their good memories, associations with their learning experiences using Pavlov's techniques, conditioning जिसको हम कहते हैं classical conditioning. You can also take, and you should as a teacher also take care of the fact that fatigue and sociological factors, they negate this motivational process. So you have to keep into account these factors as well. So this was my discussion of motivation under बिहेवियरिस्ट थ्योरीज। तो आगे की वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे मोटिवेशन को डिफरेंट थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप liking my videos, and you can always post in your questions and your comments in the comment section below. Thank you. Bye.